So hello, good morning students. So as you know, our first chapter means lesson number 18 is already completed, and you have also done the questions on page number 403 from 1 to 11. And now we are going to discuss about the next chapter means operators in Java. So first of all, what are the operators? So operators are the symbols that perform specific operation on operands. Operators क्या है? Operators are the symbols. कुछ symbols हैं. Example multiply एक symbol है means operator, plus minus increment operator means plus operator, decrement operator minus operator. Okay, these all are the symbols. So we apply the symbols on operands. Example like 2 plus 4 equal to 6 means 2 and 4 both are the operands. क्या बोलते हैं इसको? Operands. And plus is a operator means a symbol. So symbols or operators are used to perform specific operation. If we assign a plus operator to the two operands means it perform the addition. अगर हमने प्लस ऑपरेटर दिया है किसी दो ऑपरेंड्स को तो वो क्या करेगा? एक एडिशन का काम करेगा, एक स्पेसिफिक काम करेगा. माइनस किया है देन इट विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, इट विल सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज. मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन किया तो डिवीजन करेगा. मीन्स ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म सम operations on the operands. Operand कौन से? 2 and 4 are the operands and plus is a operator. So operands are the data value involved in the operation. जो भी हमारा ऑपरेशन है, जो भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी मीन्स 2 and 4 both are the operands. So Java provides various types of operators. Some of the types are like arithmetic operators, unary operators, assignment operators, relational operators, logical operators, ternary operators, bitwise operators. Okay, we will discuss each of them in our next videos or in the same video. Okay, some operators, some we will discuss now and some are on the next video. Okay. So next is the arithmetic operator. So first one is arithmetic. So arithmetic operators are used to perform simple arithmetic operations on primitive data types. Primitive data types like byte, shout, int, long, जो भी 8 data types है primitive data types, उसके ऊपर जो भी operations perform होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? arithmetic operators. Means used to perform simple arithmetic operation. तो simple arithmetic operator कौन से? One is the multiplication means multiply, division, modulus, plus, addition and subtraction. ठीक है, these all are the arithmetic operators. कौन से? plus, minus, multiply, division और modulus. Plus means to add the two values, subtract means to subtract a value from the second value. Okay, division means to divide the value and multiplication means to multiply the two values. And modulus, now what is the difference between the division and modulus? So division always check the quotient. division क्या चेक करता है? quotient को चेक करता है. Okay, example 6 divide by 2 equal to क्या आएगा? 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या उसका क्वोशंट क्या होगा? 3 है. ठीक है, 2 3 है 6. चल गया ना? ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 6 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर इज 0. ठीक है, मीन्स
जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड का साइन यूज करते हैं विद टू ऑपरेंड्स, देन आवर रिजल्ट इज 3, बट व्हेन वी यूज द मॉडुलस देन आवर रिजल्ट इज 0। मीन्स मॉडुलस चेक द रिमाइंडर, मॉडुलस चेक द रिमाइंडर। तो मॉडुलस क्या चेक करेगा? रिमाइंडर को चेक करेगा। और डिवीजन क्या चेक करेगा? कोशेंट को चेक करेगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यू नो अबाउट इट। So our next one is the unary operators. So what is a unary? Now one more thing about the arithmetic operator. Arithmetic operators take two operands. Arithmetic operators takes two operands. I'm written here. It takes two operands. Means ये क्या करेगा? दो ऑपरेंड लेगा हर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर आप प्लस करते हो तो आप क्या करोगे? 2 मीन्स एक ऑपरेंड हो गया और 4 सेकेंड ऑपरेंड हो गया। 2 + 4 = 6 लाइक दिस। ठीक है, मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टेक 2 ऑपरेंड्स, 2 और 4, 6 और 2, 6 और 2। ठीक है, एंड यूनरी ऑपरेटर्स नीड्स ओनली वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर को सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, दे आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नेगेटिव वैल्यू, मीन्स टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू और रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं -8, ठीक है, यूनरी माइनस। ठीक है, यूनरी माइनस और यूनरी प्लस। यूनरी माइनस मीन्स -8 टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू, सेम एज टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू, +8। ठीक है, यूज फॉर निगेटिंग द वैल्यू मीन्स नेगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? वी यूज द यूनरी माइनस ऑपरेटर, सेम एज यूनरी यूज फॉर यूनरी प्लस, यूज फॉर गिविंग पॉजिटिव वैल्यू, ओनली यूज व्हेन डेलिबरेटली कन्वर्टिंग अ नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव। ठीक है, कहते कब हम यूज करते हैं? जब हम किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, एट दैट टाइम वी यूज द प्लस साइन विद द ऑपरेंड। ओके, अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं किया देन इट मीन कि वो पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूज फॉर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। देयर आर 2 varieties ऑफ इंक्रीमेंट, वन इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, सेकेंड इज द प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, अब देखो क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू of operand, increment operator increase the value of operand by 1। जैसे एग्जाम्पल हमने किया, यहाँ पे करते हैं int I small, हाँ, int a = 6, आगे हमने कर दिया b int b = a ++ a, यहाँ पे ऐसे कर लो a = ठीक है ++ a। चलो b कर लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। ++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज फॉर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1 मीन्स क्या करेगा? एक ऑपरेंड की वैल्यू को एक प्लस करेगा। ठीक है, जैसे a = 6 मीन्स फर्स्टली वैल्यू ऑफ a इज 6 एंड हेयर ++6, पहले क्या होगा? फर्स्टली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a एंड देन असाइन द सेम वैल्यू टू a। ठीक है, तो हमारे पास पहले वैल्यू कौन सी है? 6 है, तो ये क्या करेगा? इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। अब वैल्यू कौन सी हो जाएगी? अब क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी 7 होके किसको साइन हो जाएगी? a को साइन हो जाएगी। ठीक है, होगी बात क्लियर? मीन्स ++ ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। ठीक है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ये किसके एग्जाम्पल है जो हमने अभी डिस्कस किया? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले वैल्यू को इंक्रीज करो और फिर असाइन करो, मीन्स फर्स्टली इंक्रीज द वैल्यू एंड देन असाइन द वैल्यू। ओके, वैल्यू ऑफ a इज 6, यहाँ पे क्या होगी?
7 होगी और 7 किसको असाइन हो गया, ए को हो गया। मीन्स अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है और 7 किसको मिल गया, वो बी को मिल गया। होगी बात क्लियर? ठीक है, अगर नहीं समझा रहा तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं। इंट a इक्वल टू 6 सेमिकोलन, इंट b इक्वल टू प्लस प्लस a सेमिकोलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ b। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये देखो क्या आ गया आंसर हमारे पास आंसर आ गया 7। नहीं दिखाई दे रहा, तो अब ऐसे कर लेते हैं। ये देखो वैल्यू ऑफ रिजल्ट क्या आ रहा है, 7। ठीक है, अब देखो यह है प्री इंक्रीमेंट, मीन्स पहले वैल्यू को इंक्रीज करो और फिर असाइन करो। ठीक है, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले वैल्यू को असाइन कर दो और बाद में यूज करो। जैसे हो गया ए प्लस प्लस, ऐसे करो ए प्लस प्लस। ठीक है, अब ये कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये कौन सा है, यूलरी ऑपरेटर। वैल्यू ऑफ ए 6 मीन्स पहले ए को क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला ए को 6 प्लस 6 क्या हो गया 12, 6 प्लस 6 12। ये देखो आंसर आ गया 12। ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू अब प्लस होगी प्लस हो चुकी है, 7 हो चुकी है 6 की वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको करते हैं ऐसे, ये देखो a इक्वल टू 6 प्लस 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 क्या करता, 6 की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता, a की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट मीन्स 7, 6 प्लस 7 होता, 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए 13। ये देखो हमारा रिजल्ट आ चुका है 13। ये देखो 13। ठीक है, पता चल रहा है। सो आर नेक्स्ट इज same as pre-increment or post-increment, same as pre-decrement or post-decrement. So today we discuss about the one is the operator, second is the operands, third is the arithmetic operators, and fourth is the unary operators, increment operators and decrement operators. So next we will discuss about the next operators. I think it's much for today. Thank you very much.